Let's begin. What is programming? It is just a way to communicate or to instruct computer to perform various tasks. Now you might be thinking why you should learn programming. Programming makes things easier for you. Learning to program teaches you persistence. Once you started doing programming, you will enjoy it. You must heard that engineers are known for their creative thinking. So coding develops structured and creative thinking too. अब बात करते हैं पाइथन के बारे में. What exactly is Python? Python is an interpreted, high-level and general-purpose programming language used worldwide. By saying interpreted language, it means that we don't have to worry about compiling the program every time we are executing it. Don't get scared by word high level language. अब हाई लेवल लैंग्वेजेस का मतलब ऐसे नहीं बहुत कुछ हाई फाई होगा टफ होगा ऐसा कुछ नहीं है. इट सिंपली मीन्स मोर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फारदेस्ट टू हार्डवेयर. मीन्स जैसे अपने इंग्लिश में नॉर्मल सेंटेंस रीड करते हैं जस्ट वैसे ही आप कोड रीड करके इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस लिए कोड लिखा गया है. This makes Python one of the best and easiest programming language. Python's design philosophy emphasizes code readability with its notable use of significant white spaces. You have already been provided with the installation guide. In that, we provided steps for installing PyCharm, but most of the time, we will be running programs on Google Colab. Let me tell you some online tools to run Python code. You can see Google Colab, REPL.it, Jupyter Notebook. You can use anyone as per your comfort. Here are some career options in Python. As I told you earlier, Python is general purpose programming language. It can be used to develop things in different domains of technology like web development using Django. Maybe some of you had heard about Django earlier. Django is the best framework for web applications. Python can also be used in artificial intelligence, game development, machine learning, big data science, smart devices, etc. The companies like Dropbox, NASA, Yahoo, Facebook, YouTube, etc. are using Python for their company's project. You must be wondering what is the benefit of learning Python? You might get hired by some top-notch companies. You can see in the next slide like these are the following companies like you can see Uber, Facebook, YouTube, Google, Dropbox. So moving on, meet our team. This is our core team. Sonu Kumar Gupta, Pratik Upadhyay, Charu Bansal, Vibhanshu Garg, Nehal Chandra, Ankur Narayan Singh, Jasprit Singh, Gaurav Kumar, Aryan Singh. We are, all are from MNIT. Let me introduce you to your instructor for this particular course. This is Astha Mishra, Hecodiv technical team member and Python and C++ programmer. This is Naman Dhamani, Hecodiv technical team member, ML enthusiast and a competitive programmer also. This will be your syllabus for the Python course. We will be experiencing the Python beauty, how it makes things easier to program as compared to other languages. Thank you. Over to you, Naman. Hello everybody, myself Naman Dhamani. I am technical team member of HackoDev team. I will be your second instructor for this course. Now, कुछ लोगों का डाउट था कि पाइथन और डीएसए का कोर्स का कुछ सी प्लस प्लस और पाइथन के अंदर. तो बात ऐसी कि पाइथन का डीएसए बहुत मतलब डीएसए तो कंसेप्ट दोनों के बराबर है, बस सिंटेक्स का फर्क पड़ जाता है. और कंपनी जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तक आप लोग सी प्लस प्लस यूज़ करोगे, उसके बाद आप लोग पाइथन पे शिफ्ट हो जाओगे क्योंकि पाइथन कोड करने में ईजी होती है और मशीन लर्निंग के अंदर इसके एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है. तो इन वर्कशॉप को अटेंड करो और इन्जॉय करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आस्था, यू मे कंटिन्यू नाउ. Hello everyone, myself Astha Mishra. I'll be your instructor today.
एंड अबाउट योर डाउट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो आप लोगों के पास में एक चैट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे अंकुर नारायण सिंह जो है वो आपके डाउट्स जो है सब सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख देना, आपके पास में इमीडिएटली इसका सोल्यूशन आ जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो अब हमने जैसे कि चारू ने बताया कि पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, राइट? तो इंटरप्रेटेड से आप लोग क्या समझते हैं पाइथन के बारे में? सो लेट मी गिव यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। ओके, तो हमारे पास में दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, राइट? दो इम्प्लीमेंटेशंस के तरीके होते हैं, एक होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या है? जो आपने कोड लिखा है किसी लैंग्वेज में, उसको मशीन लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करेगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? आपका लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करता जाता है। लाइक अगर आप सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हो, है ना, तो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के बाद में पहले पूरा लिख दिया, उसके बाद में वो कंपाइल होगा पूरा प्रोग्राम, दैट इज वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा एंड देन वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वैसे वैसे लाइन टू लाइन वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। सो ये कंपाइलेशन वाला टाइम जो है वो बचता है आपका जब आपके पास में इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस आती हैं उसके अंदर, ठीक है? तो अब और चारू ने बताया था कि हम लोग जो है वो जितना भी काम है हमारा कोडिंग वाला वो मोस्टली गूगल कोलैब पे करेंगे, राइट? तो गूगल कोलैब का इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ा सा दे देती हूँ कि एग्जैक्टली किस तरह से रहेगा। ओके, सो आपको पहले ब्राउजर पे जाना है, गूगल कोलैब सर्च करेंगे आप लोग। ओके, एंड खोलते ही आपके पास में ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। लाइक मैं पहले यूज करती हूँ गूगल कोलैब, तो मेरे पास में ये और पुरानी नोटबुक्स बनी हुई आ रही हैं। बेसिकली एक नोटबुक में जो क्या है, आपका एक नोटबुक इज काइंड ऑफ अ फाइल जिसमें आप अपना कोड रखते हो, एक प्रोग्राम जो है वो रखते हो, दैट इज व्हाट अ नोटबुक इज। सो यहाँ पे आप न्यू नोटबुक का ऑप्शन दिख रहा है आपको, वो न्यू नोटबुक क्रिएट करेंगे। In a second you will get your notebook. Wait a minute. So you will get a notebook. Okay, जो नोटबुक है अपना गूगल कोलैब का वो एक ऐसा दिखता है कुछ। और अगर आपको इसके अलावा और नई नोटबुक बनानी हो, लाइक वो तो आपने पहली बार खोला तो आ गया, और यहीं से आपको अगर नई नोटबुक बनानी हो देन दिस ऑप्शन इन फाइल लाइक न्यू नोटबुक एंड यू विल गेट द नोटबुक ओवर हियर। अब यहाँ पे ये कुछ ब्रीफ आउट मैं करूंगी आपको गूगल कोलैब के बारे में। ओके, सो अगर आपको कोई कोड ब्लॉक बनाना हो, लाइक एक कोड फाइल बनानी हो, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, आपके पास में एक नया कोड लिखने का ये बॉक्स आ जाएगा। एंड इफ यू वांट टू राइट अ टेक्स्ट फाइल, सो ऐसे कोई टेक्स्ट पॉइंट्स ऐड करने हो, जैसे कि आई विल शो यू जो हमने बनाया है कोलैब का, जिससे हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, विल गेट अ मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट। और गूगल कोलैब में जो है वो आपके पास में एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई हुई है। बेसिकली जब आप जो आपका पीसी है उसके अंदर उतना मेमोरी नहीं हो पाता, अगर आप जैसे अभी तो बेसिक्स के कवर करेंगे हम लोग आपके, लेकिन आगे जाके अगर आप मशीन लर्निंग में जाते हो या फिर कोई भी नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो आपके पास में इतना स्पेस नहीं रहता है। लेकिन ये गूगल कोलैब जो है वो आपको एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कराता है। ओके, इसमें आपको पता लग जाएगा कितना स्पेस जो है वो प्रोवाइड करता है। इट्स अराउंड लाइक 12 GB एंड 128, ठीक है? रैम आपका 12 पॉइंट समथिंग GB के अराउंड रहता है एंड आपका जो डिस्क मेमोरी रहता है वो 128 के अराउंड रहता है। सो अभी तो इतना ही है, बाकी जैसे जैसे अपने काम करते जाएंगे वो और बताते जाएंगे। और जैसे अगर आपको कुछ 2-3 फ्रेंड्स मिलके आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो, तो वो फंक्शंस में डिवाइड होके वो काम चलता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे ये एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक है, ये आपको भेजना है, तो यहाँ पे शेयर के ऑप्शन से ये आप अपना सेंड कर सकते हो, वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करोगे एंड देन यू विल कंबाइन इट एंड आपको एक प्रोग्राम मिल जाएगा पूरा। सो दिस इज हाउ कोलैब वर्क्स। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वर्क इन कोलैब। ओके, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, ना कुछ इंस्टॉलेशन की ज़रूरत होती है, सो इट्स वेरी सिंपल। एंड रही बात फाइल नेम की, तो यहाँ पे आप यहाँ से फाइल नेम चेंज कर सकते हो जो भी रखना हो, लाइक लेट्स से day 1 पाइथन वर्कशॉप करके कुछ भी नाम रख सकते हो आप। ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद आवर स्लाइड्स। ये कुछ बुक्स हैं जो हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। आप लोगों को अगर हमारा जो सेशन है उसके अलावा हम पीपीटी प्रोवाइड कर देंगे आपको, लेकिन फिर भी लाइक इन डेप्थ विजन चाहिए हो आपको और डीप में जाके पढ़ना हो, देन दीज आर सम बुक्स। द फर्स्ट वन इज पाइथन क्रैश कोर्स सेकंड एडिशन
a hand-on project-based introduction to programming by Eric Metz. The second one is Head First Python, second edition, a brain-friendly guide by Paul Berry. And the third one is Programming Python, fourth edition, powerful object-oriented programming. Okay. Let's begin. So the first topic we are going to discuss today is variables, expressions and statements. तो variable से आप लोग क्या समझते हैं कि variable एक क्या चीज क्या है variable? तो a variable is a name that refers to a value. तो ये एक reserved memory location होती है. जैसे ही आप एक variable को define करते हो, आपका जो system है वो एक location, memory location दे देता है variable को और उसके अंदर आप कोई भी value store कर सकते हो. I hope you're getting my point. It's not very difficult to understand these terms because it's a high level language. So इसमें कुछ खास है नहीं, it's just simple English. So if you know the meanings of the words we're using over here, you'll get to know what exactly they stand in the Python language as well, okay? So variable is basically reserved memory location to store values. Now Python के पास में कोई ऐसी command नहीं है कि वो कोई variable declare कर सके, right? And तो हम क्या करते हैं पाइथन में, जैसे ही हम एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं, उसके साथ ही एक वेरिएबल बन जाता है. इट्स लाइक कि हम देते हैं फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल. ओके, तो फ्रूट जो है वो अपना वेरिएबल है एंड उसके अंदर एप्पल जो है वो हमने वैल्यू स्टोर किया है. तो फ्रूट मतलब वेरिएबल अपना बन गया है एंड एप्पल जो है वो हमने उसको वैल्यू असाइन कर दिया है. सो दैट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स. ओके, so now we're going to discuss about the values, types and values. So values is a basic thing a program works with. Okay, तो हमारे पास में जैसे एग्जांपल दिया हुआ values का 1, 2.6 and hello every like x is equal to 5. तो 5 जो है वो एक वैल्यू है, ठीक है. तो दिस इज व्हाट वैल्यू इज. हम किसी भी चीज कोई भी इंटीजर वैल्यू, इंटीजर स्ट्रिंग या किसी की भी बात करते हैं एंड दैट इज बेसिकली अ वैल्यू. इट्स अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट. ओके, अब इसके अंदर अपने आगे आते हैं तो हमारे पास में आता है टाइप्स ऑफ वैल्यूज. बेसिकली टाइप्स ऑफ वैल्यूज का मतलब है डेटा टाइप, कि आप किस टाइप का डेटा जो है वो डिफाइन कर रहे हो या फिर यूज कर रहे हो, राइट. तो अपने पास में मेनली जो है आपने सबसे ज्यादा काम आने वाले जो है वो है इंट, फ्लोट एंड स्ट्रिंग. डबल भी है but you'll get to know what exactly double is. So int is basically integer, negative values and positive values. यहाँ पे int की बात करते हैं तो उसमें decimal values नहीं आती है. When it comes to decimal values, we have float, okay? तो जो float है उसके अंदर decimal values आती हैं सारी. And string मतलब कोई भी अपने पास में like hello है. यहाँ पे ऑप्शन आपको examples दिया है 1, 2.6 and hello. Then 1 is integer, 2.6 is float and hello is a string. String जो है वो एक कैरेक्टर एरे होता है कुछ कैरेक्टर्स का, राइट. एंड डबल की बात अगर हम करते हैं तो डबल क्या होता है? इट्स प्रिसिजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 16 डिजिट्स. मतलब कि कोई भी डेसिमल वैल्यू है उसका अगर प्रिसिजन जो है वो अप टू 16 डिजिट्स तक है, देन दैट इज बेसिकली इन डबल. ओके, और बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी फ्लोट वैल्यू को डिफाइन करते हैं ना, कि जैसे हम लोगों ने लिखा कि लाइक वैल्यू तो नहीं लिख सकते, लाइक कुछ भी लिख दिया, कोई भी वैल्यू डिफाइन की एंड उसके अंदर हम लोगों ने कोई वैल्यू दिया 1.2 लिख दिया, 3.6 लिख दिया, -9.8 लिख दिया. तो कोई भी वैल्यू अगर हम फ्लोट में अपने देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट डबल में जाता है पाइथन के अंदर. ओके, और एक चीज और कि पहले क्या होता था, ये तो हम अभी जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का, पाइथन 3, उसमें जो इंटीजर का साइज है वो अनलिमिटेड होता है. अनलिमिटेड मतलब इंटीजर का जो है वो कितना भी बड़ा हो सकता है. लेकिन पहले पाइथन 2 में क्या होता था कि 2 इंटीजर टाइप्स होते थे, एक इंट होता था और एक लॉन्ग होता था. तो इंट में क्या होता था, उसमें लिमिटेड वैल्यू सेट आ सकता है, ठीक है, और लॉन्ग के अंदर बहुत ही बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं. यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? बिलियंस एंड ऑल दोस थिंग्स. जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ जाते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू में, देन इट कम्स टू लॉन्ग. इट वाज लाइक दैट बिफोर, बट अब पाइथन 3 के अंदर ये अपडेट हो चुका है. यहाँ पे इंट जो है वो कितनी भी बड़ी वैल्यू होल्ड कर सकता है. ओके, एंड एक बेसिक चीज और है कि कई लोग हैं जिन्होंने सी किया हुआ है एंड अभी अगर जो फर्स्ट ईयराइट्स हैं तो उन लोगों के आधे जिन्होंने कर लिया होगा, आधों का नहीं हुआ होगा. तो सी में क्या होता है कि आप लोगों का सिंटेक्स का बहुत दिक्कत रहता है कि कभी कभी सेमी कॉलन का आ गया,
ब्रैकेट्स आ गया, ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। तो पाइथन इज बेसिक वेरी सिंपल व्हेन इट कम्स टू दैट। पाइथन में आपको सिंटेक्स से ज्यादा लॉजिक पर फोकस करना होता है। सो इट्स वेरी सिंपल टू राइट पाइथन, और बहुत टाइम सेविंग रहता है ये सी के कंपैरिजन में। बिकॉज सी का सिंटेक्स की वजह से बहुत एरर्स आते हैं सी में, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो वेरिएबल्स डिफाइन करने का हमारे पास में कुछ थंब रूल्स होते हैं। जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करो तो हमेशा उसका नाम जो रखो वो मीनिंगफुल नाम रखो। लाइक मैंने आपको बताया था फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल, राइट? तो फ्रूट जो है वो मेरा वेरिएबल नेम है, दैट्स अ मीनिंगफुल नेम, लाइक एप्पल इज अ फ्रूट, सो मैंने फ्रूट नाम रख दिया। ओके, तो ऐसे मीनिंगफुल नाम रखने चाहिए। इसका एक रीजन होता है कि आपने सपोज एक प्रोग्राम बनाया, राइट? एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया आपने, और अगर कोई और उस प्रोजेक्ट को पढ़ता है, कोई चेक करता है, तो उसको पता होना चाहिए कि ये क्या लिख रहे हो आप। लाइक कि अगर आपने सीधा a इज इक्वल टू फ्रूट लिख दिया, कोई भी वैल्यू दे दी, तो वो इनपुट वैल्यू पता नहीं लगेगी जब तक प्रिंट नहीं करेंगे। तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, सामने वाले को समझ आता है कि आपने क्या लिखा है। दैट्स कॉल्ड बेसिकली रीडेबिलिटी। ओके, उसके लिए हम लोग मीनिंगफुल नेम्स चूज करते हैं। आगे जाके निमोनिक्स करके टर्म आता है, वील एक्सप्लेन यू दैट एज वेल। सो फिर अपने पास में आता है की रूल्स टू डिफाइन अ वेरिएबल। ओके, सबसे पहले तो स्टार्ट विद अपर केस और लोअर केस। अपर केस इज कैपिटल A to Z एंड लोअर केस इज स्मॉल a to Z। ओके, और अंडरस्कोर यू कैन यूज एज वेल। कभी भी कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते टाइम हम उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर स्टार्टेड विद अ नंबर। और कोई भी व्हाइट स्पेसेस जो है, अगर अपने कोई डिफाइन कर रहे हैं नंबर, तो व्हाइट स्पेसेस कभी भी वेरिएबल के अंदर नहीं आते। ओके, फिर बात आती है कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स जो होते हैं रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन कांट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम। हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो अपने मन से कोई भी नाम चूज करके एंड कोई रेलेवेंट नेम चूज करके दे देते हैं। बट पाइथन में एक डिफाइंड वर्ड सेट होता है, लाइक जो आपको दिखाया हुआ है सामने। ओके, लाइक एंड, एल्स, इंपोर्ट, रेज, असर्ट, एक्सेप्ट, ये सब कीवर्ड्स हैं। इनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, ठीक है? तो इनको आप इन कीवर्ड्स को आप वेरिएबल की तरह यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। बिकॉज जिस चीज के लिए आपको रिप्रेजेंट करना है वो उस चीज के लिए होगा नहीं, क्योंकि इन सब का प्री डिफाइंड काम होता है, ये वही उसी के लिए काम आते भी हैं। एंड वन मोर थिंग कि कीवर्ड जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय केस सेंसिटिव इज कि जैसे अपने पास में ये एल्स है, राइट? एक ये अगर हम एल्स के अंदर ई को कैपिटल कर देते हैं तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। दैट वोंट बी कीवर्ड एनी मोर। ओके, तो ये होता है केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर आप कैपिटल से स्मॉल में या फिर अपर केस से लोअर केस में जाते हो, देन इट चेंजेस, इट्स मीनिंग चेंजेस। ओके, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द कीवर्ड। So let's move on to the next thing. Let me show you some examples in Colab. Okay, so I'll be introducing you with this print word. अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट करानी है, कोई भी डेटा टाइप प्रिंट कराना है, so आपको सिंपली ये प्रिंट ब्रैकेट्स एंड यू हैव टू राइट द वैल्यू। ओके, सो जैसे यहाँ पे 4 इज एन इंटीजर, 2.5 इज अ फ्लोट एंड दिस इज हेलो। वन मोर थिंग इज दैट कि जब भी आप कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं, यू आर ऑलवेज सपोज टू राइट अ स्ट्रिंग इन कॉमर्स, लाइक इन्वर्टेड कॉमर्स, आइदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। ये मैटर नहीं करता कि सिंगल है कि डबल इन्वर्टेड कॉमर्स है, बट इन्वर्टेड कॉमर्स होने चाहिए। इससे पता लगता है कि ओके दैट स्ट्रिंग, पाइथन को पता लगता है कि स्ट्रिंग है ये। पाइथन की बहुत वास्ट लाइब्रेरी है, तो उसको जब लिखा हुआ होता है कोड तो उसको तब समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसके लिए कई चीजें जो है वो थोड़ी ध्यान रखने वाली है, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि जब भी आप ये करो तो ध्यान रखें। लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन। So we printed this. Okay, you can see it. Print 4, we get 4 over here. It's an integer type. Then we have 2.5 float type, or you can say double. Basically by default double करता है ये, double में जाता है data type में. Then we have print hello, and this is hello. Okay. Now next move to this one. Okay. तब अपने पास में next में क्या है? It's written type. टाइप से बेसिकली क्या पता लगता है कि डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू वी आर पासिंग। डेटा टाइप्स मैंने आपको अभी बताए थे, वी हैड इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो जब अपने प्रिंट के साथ यहाँ पे टाइप भी दे देते हैं ना, डिफाइन कर देते हैं, तो इससे अपने पास में जो प्रिंट करेगा
वो इस पर्टिकुलर वैल्यू का टाइप प्रिंट करेगा, डेटा टाइप प्रिंट करेगा। जैसे ऊपर अपनों ने क्या किया था, व्हाट वी डिड वाज कि हमने प्रिंट के अंदर सीधा वैल्यू पास किया एंड वो उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट के अंदर अपने टाइप एंड देन वैल्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये 4 नहीं प्रिंट करेगा, इट्स गोना प्रिंट द टाइप ऑफ 4, दैट इज बेसिकली द डेटा टाइप ऑफ 4। ओके, सो लेट्स रन दिस वन। जैसे मैंने बताया था आपको, 4 का डेटा टाइप इज इंट, 2.5 का float, it's a decimal number as you can see, and then hello का string. okay, फिर आता है प्रिंट के अंदर ये अपना कॉमास का, व्हेन वी आर प्रिंटिंग समथिंग, प्रिंटिंग अ वैल्यू, प्रिंटिंग एन इंटीजर, तो प्रिंट पाइथन में प्रिंट करते टाइम जो है हम क्या है वो कॉमास का यूज नहीं कर सकते। ओके, अभी आप डिफरेंस देखोगे, ये मैंने प्रिंट, ये 2 वैल्यूज लिखी है मैंने। ओके, लेकिन जब मैं इनको प्रिंट करूंगी देन यू विल गेट अ डिफरेंट आउटपुट। ओके, लेट्स सी, यू गेटिंग माय पॉइंट कि जब अपनों ने कॉमास लिए हैं तब अपने पास में सिर्फ ये वैल्यू आया है, राइट, बट विदाउट कॉमास वी गॉट कंप्लीट वैल्यू। सो हमेशा याद रखना कि जब भी आप प्रिंट का यूज कर रहे हो तो कॉमास का अलग सिग्निफिकेंस आ जाता है, एंड प्रिंट फंक्शन आपको और आगे अच्छे से समझ आएगा जब और डिटेल में आपको बताएंगे। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट वन। ओके, अब ये हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन किया। ओके, ये हमारा वेरिएबल नेम है एंड दिस इज द वैल्यू वी हैव असाइन्ड टू इट। अब हम लोगों ने जब ये प्रिंट किया, इधर इसका वैल्यू प्रिंट किया, देन वी गॉट 5। अब जिन लोगों ने सी में काम किया है तो उन लोगों को पता होगा कि बेसिकली, ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट कांसेप्ट लेटर। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने इधर क्या डिस्कस किया है कि क्या क्या वेरिएबल को डिफाइन करने के रूल्स थे। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि या तो अपर केस हो सकता है, या लोअर केस हो सकता है, या अंडरस्कोर हो सकता है। और एक चीज और पढ़ी थी कि न्यूमेरिकल से या फिर ऑर्गन से, नंबर से कभी भी एक वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाट रिटन ओवर है एज वेल, कि हमने अंडरस्कोर से डिफाइन किया है, इधर से डिफाइन किया है, ये डिफाइन किया है, ये सब किए हैं, एंड ये एक पॉसिबल वैल्यूज है जो डिफाइन कर सकते हैं, ये पाइथन अलाउ करता है। बट व्हेन इट कम्स टू दीज वैल्यूज, ये पाइथन अलाउ नहीं करता है। ओके, एंड लुक एट दिस, वी हैव यूज्ड अ वर्ड एट द रेट, दैट्स आल्सो नॉट कैन नॉट बी यूज्ड ओवर हियर। हम सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स में, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, व्हेन यू आर डिफाइनिंग अ वेरिएबल। और एक चीज और बतानी थी कि जब आप वेरिएबल, पाइथन जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड्स जो हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, राइट, तो पाइथन भी है वो भी केस सेंसिटिव है। जैसे आपने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है a to b। ओके, अब यहीं आप अगर प्रिंट करते हैं कैपिटल A to B, let's see what's gonna happen. See, it's giving any value. Actually I've tested it earlier, so I've assigned a value to capital A to B, so ये वो शो कर रहा है, बट हमने ये डिफाइन भी नहीं किया है A to B, पहले किया हुआ था। अगर आप पहले बिना डिफाइन किए हुए एंड इस A to B को प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो ये आपको एरर दिखाएगा कि आप लोगों ने डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि ये स्मॉल A to B एंड कैपिटल A to B दोनों अलग ही वेरिएबल्स हो जाते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल नेम। ओके, so let's move on to our PPT. Let's wait for a minute. You can look up to the concept. I'll load the previous pages of the PPT and you can ask doubts in the chat box. I hope I'm not going too fast. It's fine with the speed, I guess, right? You can reply in chat box to the questions, okay? And you will be answered, like almost we have 2 instructors for just clearing your doubts, okay? So you can really ask it without hesitation. Are you getting what I'm telling you? Or I'm going way too fast? Is it fine? My speed, my tempo, is it okay?
Yes, Astha, they are typing in chats. As I can see, you can continue with this page. Okay. Please feel free to ask your doubts, because later on you'll deal with higher level of these, higher understanding of these concepts as well when you want to work on big programs or all these things. This is just a brief out. First day is just a brief out. You'll be using these commands only further. Okay. So let's begin with operators and operands. Okay. आपके जो भी डाउट्स हैं वो चैट बॉक्स में क्लियर हो जाएंगे. डोंट वरी, मैं आगे प्रोसीड कर रही हूँ because we have limited time, I guess. So what exactly is operator and operand? ठीक है, तो operators are special symbols representing computations like addition, subtraction, etc. So simply अगर देखें तो operators जो है वो special symbols होते हैं in Python to carry out arithmetic operation or logical computations, right? तो जैसे अपना addition sign हो गया, subtraction हो गया, multiplication, division, all those signs, symbols are basically operators. And what exactly are operands? Are values on which operations take place. ठीक है, तो जैसे अपने पास में एक एक्सप्रेशन आ जाता है कि x plus 5 is an expression. So इसमें x and 5 जो है वो अपने operands हैं. I'm sorry. और जो प्लस है वो अपना ऑपरेटर है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट. ओके, आप सबको ये तो आता ही होगा बेसिकली, सब मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे और नहीं भी होंगे तो दिस बेसिक, वेरी बेसिक थिंग, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स. So these are some of the operators. Okay, this is addition, subtraction, multiplication, exact division. This is raised to the power like square. Okay, raised to the power of that particular. And this is integer division and modulus. Integer division is like when you are dividing a particular number with some number like x divided by y, and it's like 5 by 2. Please turn off the mic. or any the value. Okay, so आपको क्या मिलेगा जब आप किसी दो नंबर्स का डिवीजन करते हो एंड इंटीजर डिवीजन करते हो, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मिलेगा. ओके, उससे it'll be more clear. I'll be showing the examples on Google Colab as well. Okay, let me switch my tab. Like अभी मैंने आप लोगों को बताया था x equals to 5, x plus 1. ठीक है, ये x जो है 5 है, these all are basically x plus 1. ये हमारे operands है, and ये जो signs है वो operators हैं. Equal to is a different thing. We have assigned a value. X is a variable. We have assigned 5 to it, and x plus 1. ये x plus 1 basically क्या है? ये क्या करने वाला है? Like हमने अभी ऊपर देखा कि जितने भी कोड्स अभी ऊपर लिखे हुए थे उसमें प्रिंट एंड देन उसके अंदर एक वैल्यू था जो वो प्रिंट करता था. अब हम लोगों ने क्या किया कि सिंपली एक वैल्यू लिख दिया, x को वो वैल्यू असाइन किया एंड सिंपली अपडेट कर दिया. तो ये यहाँ पे हमारे पास में एक कोलैब में एक फंक्शन अवेलेबल होता है, ये यू कैन से कमांड अवेलेबल होता है कि अगर आप कुछ भी लिखते हो सिंपली बिना प्रिंट के भी लिखते हो तो वो प्रिंट हो जाता है. लेट मी शो यू. See, and this is x plus 1. Like this x plus 1 is basically equal to, let me show you. This is equal to x equals to x plus 1. Okay, ये x plus 1 जो है वो इस चीज के इक्वल है एंड ये डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है. अब जैसे मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, लेट मी रिमूव इट. ये x plus 1 आया, अब मैं यहाँ पे वापस x लिख के एंड फिर इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, राइट? सॉरी अब ये भी लिखा हुआ था एंड ये भी लिखा हुआ था, बट इसने सिर्फ नीचे वाले को लिया है. इट्स लाइक ये सिर्फ एक ही बार काम करता है. लाइक आप ये लिख दो, ये लिख दोगे तो फिर प्रिंट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना आपको कोलैब में. तो होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट एज वेल. अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स हम लोगों ने अभी जो पीछे देखे थे, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स थे उसमें काफी सारे, एंड नाउ यू विल सी कि क्या कैसे सब है, क्या ऑपरेशंस ऑपरेट हो रहे हैं सब पे. ठीक है, नाउ ए की वैल्यू ये दे दी, बी की वैल्यू ये असाइन कर दी हम लोगों ने. अब ये सब ऑपरेशंस है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दिस पावर
integer division and this modulus function. Okay, so 5 plus 2, 5 minus 2, 5 into 2, 5 divided by 2, 5 की power 2, and then integer division. See, integer division में ये देखिए क्या हुआ है कि 5 divide by 2 लिया, and 5 divide by 2 basically हम देखें it's 2.5, but we are getting 2. So it is basically greatest integer function, okay? And what exactly is a greatest integer function is value less than or equal to that particular value, okay? So a value less than or equal to 2.5 is 2, so we are getting 2 over here. और उसी तरह से हमारे पास में मॉड्यूलस फंक्शन है. मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो बेसिकली रिमाइंडर बताता है, राइट? लाइक 5 डिवाइडेड बाय 2, तो अपना क्वेश्चन आएगा 2 एंड विल बी गेटिंग अ रिमाइंडर इक्वल्स 1. सो दिस इज बेसिकली रिमाइंडर. सो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, आई होप यू आर क्लियर कि ये क्या क्या करते हैं. दिस इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. दिस इज रेज टू द पावर. दिस इज इंटीजर डिवीजन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. Okay, this is modulus function. So this is a new term for those who haven't basically studied anything. These are 3 new terms, and for those who have studied C, these 2 are new. It's raised to the power and this one. Okay, so let's move on to our PPT now again. अब हम बात करते हैं कि एक एक्सप्रेशन क्या होता है, राइट? सो एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स. ओके, सो एग्जांपल है हमारे पास में 21x, x plus 21, ये सारे एक्सप्रेशन है अपने पास में. इट्स वेरी क्लियर व्हाट एक्सप्रेशन इज, ये सब आप लोगों को पता होगा, बेसिक इंग्लिश है. एंड देन वी हैव ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन. लाइक हमारे पास में जो मैथमेटिक्स में रूल रहता था बॉडमास वाला, मोस्टली सबको यही पता होगा, बॉडमास वाला होगा. उसी तरह से हमारे पास में यहाँ पे पेडमास रहता है, where P stands for parenthesis, E stands for exponent, D for division, M for multiplication, A for addition, and then last S for subtraction. Now we're going to move on to string operation. If you have any doubt, please ask in the chat box. Or shall I proceed? And yeah, one more thing, like we were discussing about variable, expressions and statements. Okay, so there's a difference between expressions and statements, and the main difference is that statements basically do something, like they result in something. Like x plus 21, like x is equal to 5, x plus 21 is equal to something, some value. They execute something, they are part of some execution. Okay, and expression is just this value. This written expression is just an expression, like, but statements do something while expression is just a representation. It will be more clear when it's said that way. Okay, statements do something. Asta, sorry to interrupt, but yes. Please repeat the last slide. Operators. Pedmas, like, yeah. Pedmas, this one. Yeah. Okay. सो बेसिकली एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि एक्सप्रेशंस जो है वो कॉम्बिनेशन है वैल्यूज का, वेरिएबल्स का एंड ऑपरेटर्स का. मैं आपको वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स तीनों की डेफिनेशन बता चुकी हूँ, ठीक है? तो वैल्यू इज अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट, वेरिएबल इज लाइक अ मेमोरी एलोकेटेड टू अ वैल्यू यू गोना असाइन, एंड ऑपरेटर आर बेसिकली योर मैथमेटिकल ऑपरेशंस. सो उन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो मिला के एक्सप्रेशन बनता है. ओके, नाउ the last of variable, expression and statement is statement. So there's not much difference when it comes to statements and expressions. Okay, statements and expressions में सिर्फ इतना ही difference है कि statements do something while expression is just a representation. Okay, and about the order of operation, like हम लोगों ने mostly सबने 12th तो किया ही obvio है, तो उसमें हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा एक ऑर्डर ऑफ
एग्जीक्यूशन ऑफ आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। लाइक हमारे पास में मैथ्स में सारे ऑपरेटर्स होते हैं, सेम होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑल दोस थिंग्स। सो अगर आपके पास में एक कंबाइंड एक्सप्रेशन आता है जिसमें ये सारे के सारे ऑपरेटर्स एक साथ हैं, देन इट कम्स टू पॉइंट कि आपको कौन सा पहले ऑपरेशन करना है। ओके तो उसके लिए हमारे पास में बॉडमास होता था। अब वहीं पे अगर हम यहाँ पे पाइथन में कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें ये जितने भी अपने ऑपरेटर्स थे सब यूज करते हैं, ओके तो अब उसमें पाइथन अपने आप में एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट दे देगा, नो वरी, ओके लेकिन हमको पता होना चाहिए कि पाइथन ने किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया है उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। यू गेटिंग माय पॉइंट? I hope I'm clear now. तो वो जो सीक्वेंस है that is PEDMAS. Like we had BODMAS, same way it's PEDMAS. Okay, so where P stands for parenthesis, जिसको आप brackets बोलते हो, that is basically parenthesis. Okay, E is for exponents, D is for division, M is for multiplication, A is for addition, and S is for subtraction. Hope I'm clear. Vivanshu, can you confirm if it's fine? Hello? Yes, you can go ahead. Okay. Yes, go ahead. Okay. So let's move on to string operation. Okay. तो अभी यहाँ पे स्ट्रिंग आगे आपको और थर्ड डे में डिटेल में बताया जाएगा। अभी एक छोटा सा ओवरव्यू है कि स्ट्रिंग में बेसिक आइडिया क्या है स्ट्रिंग ऑपरेशन का। ओके स्ट्रिंग में क्या क्या ऑपरेशंस अपने परफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज बेसिकली अ डेटा टाइप, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट थिंग। और अब देखते हैं ये छोटा सा स्ट्रिंग का पोर्शन जो अभी हमारे पास में फर्स्ट डे में है वो है क्या एग्जैक्टली। ओके तो स्ट्रिंग जो है वो एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का। ओके लाइक हेकोदेव जो है अपना पूरा, इट्स मेड अप ऑफ HACODEV, like these characters, right? So it's a sequence of characters. Okay, now it's an array. I've told you earlier also it's an array. So यहाँ पे अपने पास में क्या होता है कि जैसे C लैंग्वेज में एक कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, ओके लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लाइक A is equal to some character like M. ओके आपने सिर्फ ये एक M is a single character, C में जो है वो M जो है वो एक अलग डेटा टाइप होगा, बट ऐसा पाइथन में नहीं है। अगर आप A भी लिखते हो, लाइक A is equal to a single character, let it be M, तो वो जो है वो भी एक स्ट्रिंग होगा with a length of one character. ओके सो अब हमारे पास में आते हैं स्ट्रिंग के ऊपर अपने क्या क्या ऑपरेशंस हैं। सो द फर्स्ट वन we are going to see is concatenation. So अब ये concatenation word जो है इसका मतलब क्या है पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। तो concatenation जो है अपने पास में obtaining a new string that contains both of the original strings, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास a plus a है, I'll show you what exactly is going to be the output in Google Colab. It's just going to write Hekodev. So अब हमारे पास में जो नया string आया that is sum of the previous strings and it also contains the original strings. So that is basically concatenation. और concatenation के लिए हम Python में जो है वो plus operator का यूज करते हैं, addition operator का यूज करते हैं, okay? and अब अपने पास में जो next है that is multiplication. So multiplication में क्या है, print 5 star A. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो A है अपना, where A is a variable whose value is assigned to be Hekodev. So ये Hekodev जो है वो 5 times print होगा. That is basically multiplication and concatenation is just addition. Okay. So let me complete this slide and then we'll move on to Google Colab. And this is the user input. Like, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सिर्फ एक print statement लिखा और अपनी तरफ से value देके print करा दिया, चाहे वो एक वेरिएबल को वैल्यू देके फिर वेरिएबल को प्रिंट स्टेटमेंट में डाला है या फिर डायरेक्टली वैल्यू ही डाल दी प्रिंट स्टेटमेंट में। बट यूजर इनपुट इज बेसिकली कि आप जैसे ही इनपुट लेते, यूजर इनपुट में या आप इनपुट इज इन INP इज इक्वल टू इनपुट स्टेटमेंट, या आपने लिखा, देन यू आर आस्किंग द यूजर टू गिव द इनपुट। यहाँ पे आप खुद इनपुट लेके कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहे हो, जो यूजर आपको देगा वैल्यू, कुछ भी वैल्यू देगा, आइदर इट इज इंटीजर, इट्स फ्लोट वैल्यू और इट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू, तो वो एज इट इज प्रिंट कर देगा।
ओके तो ये है इनपुट के अंदर। एंड डोंट फॉरगेट कि स्ट्रिंग जो है वो हमेशा या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास या डबल इन्वर्टेड कॉमास में आता है। And the next one is choosing mnemonics. I've told you about this in when we were discussing about the variables name declaration, right? कि हमको हमेशा sensible चीज यूज करना होता है, और ऐसा कि अगर हम उसको पढ़ें तो हमें पता लगे कि हम लोगों ने ये किस लिए इसको ये वेरिएबल नेम दिया था। कुछ जरूरी नहीं है हमने एक प्रोग्राम लिख दिया, लेकिन कोई लिख दिया तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम ही पढ़ेंगे उसको। इनफैक्ट हम भी पढ़ेंगे तो हो सकता है कि इतने लिखे हो तो कुछ टाइम बाद भूल जाए कि ये क्या लिखा था। और अगर कोई और पढ़ता है तो उसको भी समझ आना चाहिए कि हमने लिखा क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू कोलैब। सो दिस इज व्हाट वी गोना डू। तो अपने हमारे पास में ये एक स्ट्रिंग है, नेम इज इक्वल टू हेकोदेव एंड द वेब एड्रेस इज इक्वल टू hekodev.club। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने कंकैटिनेशन परफॉर्म किया है। दिस वन इज कंकैटिनेशन, ठीक है, दिस वन इज सिंपली प्रिंटिंग। ओके, नाउ अगर हमको एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करनी है, राइट? जैसे अगर आप प्रिंट नेम लाइक 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं आपके पास में, लाइक नेम, एज, हाइट। ओके, लेट इट बी नेम, एज एंड हाइट। ओके, तो आप प्रिंट नेम, प्रिंट एज, प्रिंट हाइट की बजाय सीधा प्रिंट नेम कॉमा एज कॉमा हाइट करके भी डायरेक्टली कर सकते हो, जस्ट पुटिंग अ कॉमा। ठीक है, जस्ट सेपरेटिंग देम बाय कॉमास। ओके, सो दिस इज बेसिकली द यूज ऑफ कॉमा। एंड ये जो आप प्रिंट में ये स्पेस डाल रहे हो ना कॉमा के बाद में, वो बाय डिफॉल्ट आपके आउटपुट में दिखेगा, ये भी चीज याद रखना। एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने आपको पहले पीपीटी में बता ही दिया कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। और फिर ये हम लोगों ने किया है। ओके, सो अब जैसे यू लुकिंग इनटू इट कि हमने प्रिंट ब्रैकेट नेम इज अ टेक्निकल क्लब एंड चेक प्लस चेकआउट ऑन। ओके, तो ये हमारा जो है वो एक डायरेक्टली स्ट्रिंग दिया है हम लोगों ने प्रिंट करने के लिए, ये भी एक डायरेक्ट स्ट्रिंग है प्रिंट करने के लिए। एंड वी आर परफॉर्मिंग concatenation over here, right? This plus sign is representing that we are concatenating. Okay, and this web address and name, these are basically not strings. You're looking into it, right? कि हम लोगों ने name और web address लिखते टाइम inverted commas का इस्तेमाल नहीं किया है। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि प्रिंट जो है वो नेम और वेब एड्रेस के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है हमने वो रीड करके प्रिंट करेगा। आई होप आई एम क्लियर, राइट? तो नाउ वी गोना execute it and let's see the output. Now see, ठीक है, this is concatenation and concatenation का आउटपुट देखिए, यहाँ पे एक भी स्पेस नहीं आया है बीच में। एंड जब हम कॉमास की बात किए थे, आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जो भी कॉमास में बीच में जो स्पेस है वो बाय डिफॉल्ट आपके आउटपुट में दिखाई देगा। यू कैन सी द स्पेस एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन एज वेल, एंड उसके अंदर भी डायरेक्ट विदाउट एनी स्पेस सब प्रिंट हो गया है, राइट? एंड यहाँ पे कॉमास के बीच में जो ये जो स्पेसेस लिए हैं हम लोगों ने, वो स्पेसेस भी है जो एज इट इज शो हो गए हैं। सी, दिस वाज आवर कंप्लीट स्ट्रिंग, concatenated string this is, and नेम का जो वैल्यू था हेकोदेव वो यहाँ प्रिंट हो गया उधर से लेके, एंड वेब एड्रेस के अंदर जो वैल्यू हम लोगों ने असाइन की थी वेब एड्रेस को, दैट इज hekodev.club, वो यहाँ पे आ गया है। ओके, so this is the other one, like input is inp is equal to input. now एक चीज और है कि जब हम कोई भी इनपुट लेते हैं यूजर से तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो स्ट्रिंग लेता है इनपुट। ओके, तो मतलब हम लोगों ने इनपुट लाइक यहाँ पे इनपुट मांगा है, ठीक है, और यूजर ने हम लोगों को दे दिया 26 या कोई भी नंबर दे दिया या फ्लोट वैल्यू दे दिया। अब आप उसको प्रिंट करोगे ना तो वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि प्रिंट करेगा एज इट इज कर देगा, कोई ऑपरेशन वगैरह भी परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जो है वो एक स्ट्रिंग की तरह लेता है। तो लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज डूइंग। और यहाँ पे ये अपना प्रिंट स्टेटमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे इनपुट इनटू 2 है, ठीक है। तो लेट मी शो यू इट, जस्ट अ मिनट, you'll get clear understanding. So it asked me for input और मैंने यहाँ पे 26 इनपुट कर दिया है। अब जब मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया तो ये 26 आ रहा है, राइट? इट्स मल्टीप्लाइंग। और यही अगर इनपुट अगर अपने पास में एक मैथमेटिकल नंबर होता या फिर और यू कैन से इंटीजर या फ्लोट वैल्यू होता, और अगर अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करते तो अपने पास में उसका मल्टीप्लिकेशन आता, ना कि जस्ट 2626। अपनों ने ऊपर हेकोदेव के अंदर जब मल्टीप्लाई स्ट्रिंग नेम में मल्टीप्लाई किया था तब अपने पास में ये आया था, राइट?
तो इससे ये पता लगता है कि इनपुट जो है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। अब हम कुछ भी इनपुट देते हैं तो वो एक स्ट्रिंग की तरह समझता है उसको, चाहे हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएं या ना लगाएं, सीधा लिखोगे तो भी वो सिर्फ एक स्ट्रिंग की तरह ही लेगा उसको। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये लेट मी शो यू दिस इज बेसिकली टाइप कास्टिंग। अगर आपने इनपुट लिया और वो स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन आपको वो इंटीजर इनपुट लिया है या फिर फ्लोट इनपुट लिया है, तो आप वो उस इनपुट को टाइप कास्ट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली टाइप कास्टिंग, कि आप बता रहे हो कि हमने जो इनपुट लिया है वो स्ट्रिंग नहीं है बल्कि वो इंटीजर है। फ्लोट के लिए आप फ्लोट लिखते हैं डायरेक्टली इंटीजर की जगह, ओके। एंड ये जो स्टेटमेंट है, ये जो प्रोसेस है, उसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी एंड इफ आई टेक द वैल्यू एज 26 एंड एंटर करूंगी, wait a minute, what exactly happened? Wait a second, I forgot to change it over here. अब देखो, अब यहाँ पे इसने 52 प्रिंट किया, राइट। हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने इनपुट दिया, तो इनपुट दिया तो वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग जाता है, तो पाइथन ने समझा कि तो स्ट्रिंग दिया है। फिर हम लोगों ने प्रिंट कराया मल्टीप्लाई 2 करा के, तो एज अ स्ट्रिंग उसने 2626 प्रिंट कर दिया। लेकिन अब हमने एक चीज और क्या की कि वैल्यू इनपुट ये एक वेरिएबल बनाया और उसमें ये इनपुट जो है वो उसको इंटीजर की तरह रिप्रेजेंट किया, एक इंटीजर वैल्यू जो है इनपुट की वो डाल दी हम लोगों ने, एंड फिर प्रिंट कराया, देन इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एज एन इंटीजर। Is it clear? You want me to explain it again? आस्था, सॉरी टू इंटरप्ट, ये एक बार हैकोदेव वाला इनको वापस समझा दो, इनको डाउट आ रहा है। क्या चीज डाउट आ रहा है इनको? हैकोदेव के तो कोमा वगैरह कॉन्कैटिनेशन का थोड़ा लास्ट लाइन वाला समझा देंगे, नेम इज ए टेक्निकल क्लब वाला। अच्छा, ओके। उसके बाद ये वाला भी स्लाइड, ये वाला कोड भी दोबारा समझाना है, उसके बाद नेक्स्ट वाला? नहीं, बस ये लाइन वाला समझा देंगे, कॉन्कैटिनेशन और कोमा ऑपरेटर इन प्रिंट। अच्छा, ये जो लास्ट वाला है, राइट? दिस वन, राइट? ओके, आई एक्सप्लेन इट अगेन। या सो अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था, लाइक इट्स रिटन ओवर हियर एज वेल, इफ यू वांट टू प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम देन यू कैन सिंपली पुट कॉमा, ओके। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था, ठीक है, हम लोगों ने हैकोदेव को 3 बार प्रिंट किया था, एंड कॉमास के टाइम पे क्या आता है, कॉमास बेसिकली अपने आप एक स्पेस प्रोवाइड करा देते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोगों ने वैसे कोई स्पेस नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन जब आप कॉमा डालते हो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट करते टाइम में स्पेस दे देता है, बिकॉज़ दैट्स अ डिफरेंट वैल्यू यू आर प्रिंटिंग। यहाँ पे हम लोग नेम प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन वैसे अगर करेंगे, जैसे मैंने आपको एज, नेम एंड हाइट वाला एग्जांपल दिया था, तो दोस 3 आर गोना बी डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो जब आप उनको कॉमा दोगे तो वो बेसिकली एक व्हाइट स्पेस से सेपरेट हो जाएंगे तीनों। सो कॉमा के अंदर ये आता है। कंकैटिनेशन जो है वो डायरेक्टली एडिशन है, राइट। सो नेम प्लस नेम प्लस नेम, आप बीच में कितने भी स्पेस दे दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो डायरेक्टली बिना व्हाइट स्पेस के पूरा प्रिंट कर देगा। कंकैटिनेशन मतलब किन्हीं 2 स्ट्रिंग को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। एक होता है नंबर्स का एडिशन, नंबर्स का एडिशन में क्या करते हो, 2 + 3 = 5 एंड लाइक दैट। लेकिन जब आप स्ट्रिंग्स ऐड करते हो, लाइक यू आर एडिंग हेको प्लस देव, HACO प्लस DEV, तो आपको स्ट्रिंग कंकैटिनेट होके हेको देव मिलेगा, ओके। और फिर अपने पास में ये मल्टीप्लिकेशन वाला आता है, एंड ये तो क्लियर है ये आप लोगों को। सो बेसिकली अब ये वाला समझाती हूँ मैं फिर से कि हम लोगों ने क्या किया है। तीन नहीं, हमने कॉमा यूज किया सबसे पहली बार, ठीक है। तो हम लोगों को मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करानी है, वेब एड्रेस, नेम एंड दिस स्ट्रिंग, कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग। तो हम लोगों ने इन तीनों को आप लोग अलग अलग कंसिडर करो, वेब एड्रेस को अलग करो, इसको अलग वैल्यू कंसिडर करो, एंड इसको अलग वैल्यू कंसिडर करो, ठीक है। तो अब ये तीनों वैल्यू जैसे ऊपर प्रिंट हुआ वैसे वैसे प्रिंट होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बीच वाला है इसमें कंकैटिनेशन हुआ है। कंकैटिनेशन मतलब हम लोगों ने इन दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड कर दिया है। यू गेटिंग माय पॉइंट? और यहाँ पे व्हाइट स्पेस क्यों आया है, बेसिकली क्योंकि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस प्लस समथिंग और लाइक दैट, लेकिन हमने जो इन्वर्टेड कॉमास है वो लिखते टाइम देखो स्पेस दिया है, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे हमारे पास में स्पेस आया है, ओके।
इज अ टेक्निकल क्लब, और चेकआउट ऑन के बीच में हमारे पास में जो स्पेस आया है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास की वजह से आया है। एंड देन ये कॉमास से पहले वाली वैल्यू जो है नेम है वो ये रीड करेगा, एंड इस रीड करने पे इसको पता लगेगा कि इसकी वैल्यू इसका जो वैल्यू हमने असाइन किया है दैट इज हेकोदेव, तो ये यहाँ पे हेकोदेव प्रिंट किया। फिर ये अगले वाले पे गया, ओके फिर इसने ये पूरा रीड किया, फिर इसने ये प्रिंट किया, ये पहले ये रीड करेगा, वेट अ सेकेंड, ठीक है, पहले ये एज अ टेक्निकल क्लब रीड करेगा, फिर ये देखेगा कंकैटिनेशन भी है, फिर चेकआउट ऑन भी है, तो ये क्या करेगा इज अ टेक्निकल क्लब एंड प्लस साइन जो है उसकी जगह कंकैटिनेट कर देगा, ऐड कर देगा दोनों स्ट्रिंग को। सिंपल एडिशन है, कोई कुछ है नहीं, बस 2 लाइन लिखी हुई है उसको प्लस साइन लगा दो, प्लस हटा के दोनों को जोड़ दो, इतना ही काम है, और कुछ है नहीं खास, ठीक है। और फिर अपने पास में ये वेब एड्रेस देखेगा कि वेब एड्रेस भी है, तो वेब एड्रेस भी प्रिंट कर देगा उधर से वैल्यू लेके। ये हुआ है, हुआ कुछ क्लियर? अब वापस बताना है। हेलो, Go ahead, Asta. Go ahead. ओके, ये वाला हो गया था या फिर ये वाला भी दोबारा बताना है? ओके, एक बार फिर से ये वाला भी देख लो, ठीक है। हाँ, एक चीज और कि ये जो हैशटैग लिख के हम लोगों ने ये जो लिखा है ना, एक स्टेटमेंट लिखा है, ये कोलैब के अंदर क्या है कि अगर आप हैशटैग लिख के एंड फिर कोई स्टेटमेंट लिखते हो तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड अ कमेंट, ओके। और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते टाइम पे इसको नहीं देखा जाता है, इट्स नॉट कंसिडर्ड, ओके। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ठीक है, कि आपने क्या लिखा है आपको पता होगा, कुछ सम की नोट्स टाइप ऑफ थिंग होता है ये कमेंट्स, हैशटैग वाले जो लिखे हुए हैं। अब अपने पास में है ये इनपुट का, मैंने बताया था आपको कि एक अपने ने अभी तक सिर्फ क्या किया है कि प्रिंट किया है, कोई वैल्यू अपने ने खुद ही दे दी और वो प्रिंट हो रही है। अब अपने क्या कर रहे हैं कि यूजर से इनपुट ले रहे हैं, कि हम सिर्फ उसको एक कॉलम दे देंगे और उसको बोलेंगे कि आप वैल्यू डालो, फिर आगे का ऑपरेशन हम करके बताते हैं, ठीक है, जो फंक्शन में जो पर्टिकुलर कोड के अंदर है। तो ये इनपुट एंड दिस, इसका ये काम होता है कि आपने जैसे ये इनपुट एंड ब्रैकेट्स लगा दिए, देन वी आर आस्किंग द यूजर to give a value, okay, it can be of any type, integer, float or string, but चाहे यूजर ने कोई भी टाइप की वैल्यू डाली हो, कोई भी डेटा टाइप डाला हो, लेकिन जब वो वैल्यू इनपुट होकर हमारे पास आएगी तो पाइथन जो है वो उसको एक स्ट्रिंग ही लेता है एज अ इनपुट, उसको एक स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट करता है। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया भी था कि यहाँ पे जब ये वैल्यू इनपुट की जगह सिर्फ INP करके स्टार किया था, एंड INP इज बेसिकली जो इनपुट हमने लिया है, तो वो एज अ स्ट्रिंग था, वो 26 मैंने 26 दिया था तब 2626 आया था, राइट। तो वो 2626 देखा हमने कि वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो गया, जो हमने ऊपर यहाँ पर इस कोड में भी देखा था, राइट। ये वाला जो देखो एंड ये देखो, सिंपल मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो बस वही नीचे हुआ था, ये स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था एक, इट्स नॉट considered, it was not considered as an integer by the Python, okay। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला पाइथन को कि ये हमने जो दिया है वो एक इनपुट डेटा टाइप है, ना कि स्ट्रिंग है। हम बेसिकली उसने तो खुद ने स्ट्रिंग ही समझा था, लेकिन हमने क्लेरिफाई किया कि हमने जो इनपुट दिया है आपको वो स्ट्रिंग नहीं है बल्कि एक इंटीजर है, ओके। तो एक नए वेरिएबल के अंदर हमने ये असाइन कर दिया उसको, एंड दिस बेसिकली इज नोन एज टाइप कास्टिंग, ठीक है। डेटा टाइप होता है, इंटीजर इज अ डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड टाइप, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड टाइप कास्टिंग। और फिर अब हमने ये वैल्यू इनपुट के ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन वाला अप्लाई किया ना, ये ऑपरेशन, तब हमने देखा कि हमारे पास में एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कि अब जाके इसने 26 को एक इंटीजर की तरह ट्रीट किया है रादर देन ट्रीटिंग इट एज अ स्ट्रिंग, ओके। सो अब बात आती है कि निमोनिक्स की बात कर रहे थे हम, राइट। तो निमोनिक्स का क्या होता है एग्जैक्टली मैंने आपको पहले बताया था यूजफुल वेरिएबल नेम्स के बारे में ना। निमोनिक्स में क्या होता है, यूज्ड टू डिजाइन टू एड द मेमोरी,
इसका क्या मतलब है कि एक कोई ऐसा नाम रखना जो आपके मेमोरी में पता हो, आपको याद हो कि ओके इसका मतलब ये होता है, सो इट्स रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, ताकि आपको बाद में याद रहे कि मैंने ऐसा 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 करके ये प्रोग्राम बनाया था। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, इनपुट सेम है सबका, कोई चेंज नहीं है, जस्ट हमने वेरिएबल नेम चेंज किया है एंड दैट लेट्स सी कि क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अब कई लोग जो है सिर्फ ताकि मेहनत ना करनी पड़े, छोटा लिखना पड़े, दे जस्ट असाइन इट लाइक ए बी सी ए स्टार बी प्रिंट सी, ओके ये कर दिया उन लोगों ने। अब बाद में आप प्रोग्राम देखोगे, ठीक है, कोड देखोगे अपना और ये देखोगे कि अच्छा ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, लेकिन फिर देखोगे ये ए बी है क्या एग्जैक्टली जिनको मल्टीप्लाई किया है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ए बी इज, कि दिस इज द नंबर ऑफ आवर्स that a person is working, ठीक है, this is the rate and this is the pay, ओके अब आपको पता लग रहा है कि आपने अच्छा इसलिए प्रोग्राम बनाया था हम लोगों ने। तो ये चीज है ना, जब आप निमोनिक्स का ध्यान, चूजिंग निमोनिक्स दैट इज चूजिंग मीनिंगफुल वेरिएबल्स, ओके जब आप वेरिएबल नेम का ध्यान रखते हो तो आपको पता लगता है कि ओके हमने इसलिए प्रोग्राम, अंडरस्टैंडिंग मिलती है, रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम की। अब कोई इतना माथा नहीं मारेगा, देखेगा कि अच्छा ये किया था, ये किया था, किसी को पता नहीं लगेगा ना आपके दिमाग में क्या सोच के आपने वो कोड लिखा था। तो आपको खुद बताना पड़ेगा ताकि दूसरों को समझ आए कि ओके दिस इज व्हाट इट इज। अब कई लोग जो है वो ऐसे नाम रख देते हैं, कोई सेंस ही नहीं है, बताओ, लिख के खुद ही भूल जाएगा कि क्यों लिखा था। और यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ये प्रिंट स्टेटमेंट है ओवर हियर एंड ओवर हियर, ठीक है, ये क्या डिफरेंस लाती है, आई शो यू दिस। ये एग्जीक्यूट किया, these are the values we are getting, ठीक है, सबका वैल्यू आउटपुट सेम है, जस्ट द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर कोड मैटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रिंट एंड दिस एम्प्टी ब्रैकेट है, ये क्या कर रहा है कि एक लाइन स्पेस दे रहा है हम लोगों को, ठीक है, जैसे 43.75 के बाद स्पेस है, यहाँ पे 43.75 के बाद स्पेस है। और यहीं जब हम लोगों ने ऊपर प्रिंट किया था ना, लाइक हैकोदेव वाला प्रिंट किया था, यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली प्रिंट 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 लिया तो कोई भी लाइन स्पेस नहीं आया है। तो अगर आपको कोई लाइन स्पेस देना हो ना, तो डायरेक्टली आप लोगों को सिर्फ ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे एंड यू विल गेट अ लाइन स्पेस। सो होपफुली यू आर डन विद द कांसेप्ट्स ऑफ दिस निमोनिक्स एज वेल, एंड प्रिंट स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया होगा अब तक। तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। Yeah, so there's a problem some students are facing that they want the explanation to be in English also, little bit, like include little bit more English. Okay. ओके सो कोई कंसेप्ट है जो समझ नहीं आया जो दोबारा इंग्लिश में बताना है? हेलो, Yeah, wait, I'm seeing the chat box if there is any. Currently, there is no such query. You can proceed, but just include little bit of English, okay? हाँ ओके ओके नो इशू। So the next one is Boolean expressions. So Boolean expression जो है वो एक expression है जो या that is either true or false. It's like it can only have two values. It's either can be true or it can be false. Okay, nothing else than that. Like we have 0 and 1, like right? उसी तरह से अब जैसे यहाँ पे हमारे पास में print 5 equals to 6 है, ठीक है, ये इट्स काइंड ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, इक्वल्स इक्वल्स यू विल गेट टू नो अभी नेक्स्ट स्लाइड में। आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल एग्जीक्यूशन। तो अभी अब आप लोगों ने ये एग्जीक्यूट कराया प्रिंट के अंदर, so you will get the output either true or false, nothing else than that, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, ट्रू और फॉल्स जो है वो बेसिकली कीवर्ड्स की तरह है अपने पाइथन के अंदर, ओके। और अगर आपका इसका जो लेटर्स है लाइक ट्रू एंड फॉल्स में, इफ यू चेंज द फर्स्ट लेटर टू बी लोअर केस, then it will basically be just a variable name with no particular meaning in Python, okay. These are some of the expressions, operators basically that result in true and false expressions, right? Now first one is x not equals to y.
The earlier one you've seen 5 equals 5, 6 equals 5. This is going to give us true. This is going to give us true, and this one is going to give us false. Okay. So this is basically equal to operator. Okay. कि ये देखने के लिए कि 5 के इक्वल है, 6 है या नहीं है. अब यहाँ पे the next one we are having is x not equal to y. ठीक है. So basically these are just the conditions you want to check, and जिनका जो result आएगा that can either be true or be false, that's 0 or 1. Okay. अब यहाँ पे हमारे पास में जो output आएगा उसके अंदर true and false print होकर ही आएगा. Okay. So the first one is x not equal to y. The second one is x is greater than y. Third is x is less than y. The fourth one, x greater than equal to y. Then x less than equal to y. X is y. X is not y. Okay. So all the above ones are clear, but let me explain you x is y and x is not y1. Okay. So don't confuse it with x is equal to y or x is not equal to y. यहाँ पे when we are talking about x is y or x is not y, we are talking about their IDs, okay, their addresses. ठीक है. So this is what exactly it is. I'll show you in Google Colab what exactly I'm talking about. And these are the logical operators, logical operators and or not. You must have studied in 11th or 12th about these. There's a table, truth table. On the next one, you'll get to know more about it. Okay, so here we are having is a fact about prime numbers. All prime numbers are of form 6n plus 1 or 6n minus 1 except 2 and 3. Just memorize it. Okay, so this is the truth table for and, or, and not. Okay. So we are having operator A, operator B, logical and result. Okay. So if this is true, and we are performing a logical and operation, it's going to result as true. Okay. Basically, it's like 1 and 1 is 1, 1 and 0 is 0, 0 and 1 is 0, and 0 and 0 is 0. It's like अगर एक भी true होगा, if either of the two operators result in true, then you're gonna get the output as true. So there's only one situation when you can get true as a result, when you are using and operator. Okay, so that is only the condition when both of the operator A, operator B are true. As you can see, true, true gives us true, true, false, 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 true, false, 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 false. And similarly in OR operator, if either of the operator A, operator B is true, we're going to get the result as true. We're going to get the output to be true. Okay, you can see over here, like true, true gives us true, true, false gives us true, false, true gives us true, and false, false gives us false. Okay, so and the last one is not operator. Okay, basically, yeah, not operator. So it's operator A. If it's true, it's going to reverse it to false. If it's false, it's going to reverse it to true. Let's see. Okay, now like we are having this A is equal to 5. We assigned a value to A, which is 5, and now we are checking the result of this. If A equals 5, what are we going to get the result? Okay, so basically this is okay. Now the next one is print type of true, right? Basically boolean is a data type as well. Okay, boolean is also a data type, and remember, note this thing ki T is capital. Okay, with T capital, if like let me show you, if this T is not capital, see its color changed. Okay, it's not a keyword anymore. Okay, so if you change it to this capital, then it's a keyword. Okay, let's execute this one. Right, so you check this. If A equals to 5, it's printed true. See, the output is true. We have assigned the value of A, and this is basically a, you can say, a conditional execution as well. Okay, and the type of boolean, type of true is boolean. Okay, and these are the operators. See, x equals to 5, y is equal to 6, z is equal to hello. Okay, so if x not equal to y,
these are the operations I've explained you. Okay, now let us see what exactly we're getting. See, x not equal to y, true. X is greater than y, false. X is less than y, true. X is greater than equal to y, false. X is less than equal to y, true. X is y, false. X is not y, true. Now let me tell you what I was when I was talking about that is and is not one. If we change it to 5 and then execute it again, wait a minute, why is it showing that way? Zoom out a little bit. Wait a minute. I don't know why is it showing it that way. Must be something with Google Colab, because basically when we are talking about x is y and x is not y, we are discussing about the ID of that particular variable. Okay, and ID is the address we are talking about when we are talking about ID in Python. Those who have studied C, they must be knowing about the address of a particular variable. So when we're talking about that in Python, it's basically the ID of that particular variable. I'll check in and let you know what exactly happened over here. There must be some error over here. So these are the logical operators. Let me zoom in. About this if and else condition, I'll tell you what exactly it is. It is a conditional execution system. You'll get to know about it in next slide. I'll be explaining it to you from PPT, and then I'll be back with Google Colab. So we assigned a value x equals to 5 and y is equal to 3. Now in this if statement, we provided it with a condition if x equals to 5 or y equals to 3. See, now x equals to 5, we know it's true, right? And if y equals to 3, we know that is true as well. So this is the statement that's going to be executed, and we're going to get the output to be 8. See, x plus y is equal to 8. Now if any of the situation, if any of the condition is not going to be true, still we're going to get this as the output only. Okay, but if both of these conditions are wrong, like x equals to 1 and y equals to 2, see, this is the one that's been executed. Okay, let's just take 2 minutes break. Okay, You can ask your doubts in the chat box. If anyone have doubt, please ask in the chat box. Ankur, Yes.
Yeah, explain this logical operators example which Astha did last time, because like many of the students are facing difficulty in this. She's just coming. Wait a minute. She will explain. Just wait a minute. Okay, okay. Okay, so let's begin. Okay, about this logical operators uh, example, I'll explain it to you after explaining you conditional execution, because you might be facing problem because of the fact that you have not been introduced with conditional execution. Okay, let's move on to PPT and then I'll explain it to you again. Yeah, this one is, I guess, clear. This and this, I'll be explaining it to you again after explaining you what exactly is conditional execution. Okay. So in order to write useful programs, we almost always need the ability to check conditions and change the behavior of program accordingly. So what exactly we do when we are talking about conditional execution is control whether or not the core will execute an instruction. Okay, you must have heard about if else statement. Okay, कि if this is true then print this, अगर ये true नहीं है then दूसरी statement ले आते हैं हम लोग. Hope you're getting it. Okay, so लेट मी मेक इट मोर क्लियर कि अगर आपने कोई भी एक कंडीशन दिया कि आपको कुछ ऐसा सिचुएशन है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे ये चाहिए मेरे आउटपुट में, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मुझे ये चाहिए आउटपुट में. ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने उधर एग्जांपल में किया भी था. जो इफ के अंदर वाला जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर हम हमें कंडीशन देते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो इफ स्टेटमेंट के अंदर हम प्रोसीड करेंगे एंड प्रिंट करेंगे जो लिखा हुआ है. और अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन जो है हमने इफ के अंदर इस स्टेटमेंट के अंदर दी है वो ट्रू नहीं है तो या तो वो प्रोग्राम या तो वो इफ स्टेटमेंट वही टर्मिनेट हो जाएगी, वरना अगर हम लोगों ने एल्स लिखा हुआ है कि अगर वो नहीं है तो उसके अलावा हमें क्या प्रिंट करना है वो प्रिंट हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे डायग्राम डेमोन्स्ट्रेशन है. ठीक है, look at this. ये हमारा इफ के अंदर का जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर हम लोगों ने कंडीशन दिया इफ x इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, अगर ये सिचुएशन जो है इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है हमारे पास में तो वी गोना प्रिंट जो हम लोगों ने इफ के अंदर स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड वी गोना एंड दैट इफ कंडीशन. लेकिन अगर वो फॉल्स है तो वो डायरेक्टली एंड हो जाएगा बिना प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए. ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने इफ x इज ग्रेटर देन 0 है लिया है, ये करने से पहले हम लोगों को पहले x को डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा. हमने x का वैल्यू दे दिया, x इज इक्वल टू 2 दे दिया. ठीक है, नाउ 2 इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, सो वो इफ में जाएगा, वो स्टेटमेंट देखेगा x इज ग्रेटर देन 0, वो देखेगा x की वैल्यू 2 है. ओके, सो 2 इज ग्रेटर देन 0, इट्स गोना प्रिंट x इज पॉजिटिव. बट अगर हम वैल्यू लेते हैं कि x is equal to, okay, there's a space between these two programs, okay, make it clear. और अगर हम x की वैल्यू लेते हैं -2, so basically x is not greater than -2, 0, sorry, -2 is not greater than 0, तो फिर ये जो स्टेटमेंट है हमारा print x is positive, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. सिमिलरली हम इस पे जाते हैं, अगर हम x is equal to 2 लेते हैं यहाँ पे तो ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो डायरेक्टली एंड हो जाएगा, है ना. और अगर हम x is equal to -2 लेते हैं which is less than 0, if x is less than 0, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है प्रिंट के अंदर पास वाला, सॉरी, प्रिंट के अंदर पास वाला जो है वो एग्जीक्यूट होगा, दैट इज ये प्रिंट करेगा पास एंड देन वो इफ कंडीशन जो है, इफ स्टेटमेंट जो है वो एंड होगा. इफ का कंसेप्ट समझ आया तो फिर मैं वो लॉजिकल ऑपरेशन वाला एक्सप्रेशन वाला जो एग्जांपल है वो मैं समझाऊंगी. अगर नहीं आया then I can explain it again as well. I hope it's clear. So about, let's do this as well. Okay, now indentation versus braces. ठीक है, तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जो C प्रोग्रामिंग है वहां पे ब्रेसेस आते हैं. मतलब जब आप C में इफ कंडीशन लिखते हो, इफ स्टेटमेंट लिखते हो, उसके अंदर कंडीशन लिखते हो, तो वो
स्टार्ट करने के लिए यू बिगिन विद द ब्रेसेस एंड फिर इस इफ के अंदर की सारी जो स्टेटमेंट्स आपको रन करानी है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है, अगर इफ के अंदर वाली कंडीशन ट्रू है, तो जो स्टेटमेंट्स आपको रन करानी है वो ब्रेसेस के बाद लिखोगे एंड आप क्लोज करोगे उसको. मे बी लेट इट बी 5 4 एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यू गोना एग्जीक्यूट. बट पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता. बेसिकली पाइथन में आपने देखा होगा, कंपेयरिंग इट विद सी, दोज हु हैव स्टडीड सी, तो there are no semicolons after every statement, there are no braces to start a particular function, or you can say to start a particular condition. Okay, it's very simple. बल्कि यहाँ पे पाइथन के अंदर जो है वो इंडेंटेशंस होते हैं. और इंडेंटेशंस क्या होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी पीछे देखा था कि यहाँ पे इफ लिखा, x ग्रेटर देन 0 लिखा, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्पेस दिया है. ठीक है, तो ये स्पेस क्या बताता है कि हम इफ के अंदर जा रहे हैं, इफ कंडीशन जो है उसको चेक कर लिया है, एंड देन वी आर एंटरिंग इनटू दीस स्टेटमेंट्स एंड देन वी आर चेकिंग, और यू कैन से वी आर एग्जीक्यूटिंग दीस प्रिंट स्टेटमेंट्स. ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर ये x ग्रेटर देन 0 होगा तो अंदर जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा. दैट इज अ क्लियर थिंग जो मैंने अभी आपको समझा दी है. लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि आपको इसके अंदर कब जाना है? आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इफ एग्जीक्यूट होने के बाद ही हम एक्सेस कर सकते हैं? ठीक है, होप इट्स क्लियर. अगर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा उसको इफ वाला स्टेटमेंट को बता के फिर इंडेंटेशन बताऊं. Please guys, if you don't understand, please ask again, because this is very important concept. We can explain it again. If you want to repeat this concept, we can repeat, just write in the chat box. Repeat indentations for them once again. Okay. Just a minute. So basically जब हम लोगों ने एक if कंडीशन जो है उसको शुरू किया, राइट? यहाँ पे हम लोगों ने if x is greater than 0 कॉलन लगा के and then we have written this print statement. ठीक है, अगर ये हमारा if वाला स्टेटमेंट जो है इसके अंदर का कंडीशन ट्रू होगा, सिर्फ तभी प्रिंट वाले पे जाएगा, है ना? वरना ये सीधा एंड हो रहा है, वरना ये सीधा डायरेक्टली एंड हो रहा है. तो बेसिकली ये है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट जो हमारे पास में आ रहा है वो इफ के अंदर है, लाइक इफ के अंदर का प्रोग्राम है, वो इफ के अंदर का कोड है कि इफ अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये इस कोड में एंटर करेगा, वरना ये बाहर से ही चला जाएगा. Are you getting it? So basically ये बताने के लिए कि this statement is basically a part of if statement only. This statement is part of if statement, और अगर ये if statement के अंदर वाला condition true रहता है तो ही ये statement execute होगा. तो ये indentation is basically spaces. We have provided some spaces over here, right? That is basically indentation. ये बताने के लिए कि ये जो statement है वो if के अंदर का statement है. ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो इफ के अंदर का स्टेटमेंट है. अगर इफ का ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये प्रिंट स्टेटमेंट की तरफ जाएगा एंड उसको प्रिंट करेगा जो उसके अंदर हम लोगों ने इनपुट दिया है वो, और एल्स इट्स गोना जस्ट गो स्ट्रेट वे एंड एंड इट. ओके, ये इंडेंटेशन है. बेसिकली दैट वाज अ कंपैरिजन बिटवीन इंडेंटेशन एंड ब्रेसेस. जिन लोगों ने अभी तक सीन नहीं पढ़ा है वो लोग वो ब्रेसेस वाले उस पर ध्यान मत दो. यू गाइज विल बी कंफ्यूज. जिन्होंने सी पढ़ा है दे मस्ट बी नोइंग कि हम जब एक इफ स्टेटमेंट शुरू करते हैं तो हम पहले ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं एंड देन इफ के अंदर का जो कंटेंट है वो लिखते हैं, अंदर का कोड लिखते हैं एंड देन वी क्लोज इट. सो जब अपने कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं तो हमको पता लग जाता है कि ओके हम अब इफ स्टेटमेंट के अंदर घुस चुके हैं, उसको कंप्लीट करके वी गोना एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर पोर्शन एंड देन वी गोना कम आउट. वैसे ही पता लगाने के लिए कि ओके ये कोड जो है, ये जो पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो इसके अंदर का स्टेटमेंट है और ये सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू होगा, सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा. दैट इज बेसिकली इंडेंटेशन. these spaces we are providing, we are telling them कि ये जो हमारा ये वाला जो कोड का पोर्शन है ये इफ के अंदर का पोर्शन है और सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा इफ का कंडीशन ट्रू रहेगा. Is it clear now?
हेलो, रिप्लाई करो ताकि मुझे पता लगे मुझे आगे बढ़ना है या फिर वापस बताना है इसको. It's clear to them. You Yes, can proceed. you can continue. Okay. तो इंडेंटेशन एंड ब्रेसेस क्लियर हो गया है. अब ये है बेसिक प्रोग्राम फॉर इवन ऑड. ओके, तो अगर अपने पास में ये एक है कि इफ का ये स्टेटमेंट है, दिस इज द कंडीशन. इफ एक्स रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0, ये हमें क्या बता रहा है कि x रिमाइंडर 2 मतलब कि एक पर्टिकुलर अपने पास में वेरिएबल है x, ठीक है, जो हम बेसिकली यूजर से इनपुट ले रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है. उसने कोई भी वैल्यू दिया x का, एंड अगर उसका रिमाइंडर जो है 2 के साथ 0 आ रहा है, रिमाइंडर यू नो लाइक वी आर हैविंग 10, ओके, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज गोना गिव अस द रिमाइंडर 0. सो बेसिकली दैट इज एन इवन नंबर. मॉड्यूलस फंक्शन मैंने आपको सॉरी मॉड्यूलस ऑपरेटर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पीछे कि बेसिकली मॉड्यूलस लेते हैं अगर हम किसी दो नंबर्स का, लाइक x मॉड्यूलस विद y, सो बेसिकली दैट इज द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय y. ओके, तो अगर हम किसी नंबर को x को कोई वैल्यू जो हमें मिला है यूजर इनपुट से, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ और हमारा रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आता है, बेसिकली दिस इज इक्वल टू साइन, ठीक है, इक्वल्स टू. ये भी कंडीशनल है कि अगर वो 0 के इक्वल आता है, देन यू वांट द पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट इवन. और अगर वो रिमाइंडर उसका 0 के इक्वल नहीं आता, व्हेन दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 2, देन यू गोना प्रिंट ऑड. ओके, इफ दिस स्टेटमेंट, दिस कंडीशन इज ट्रू, we are supposed to print this even, and if this statement above if condition is not true, you're gonna enter the print area, not else, you're gonna enter in else and you're gonna print odd. This is the basic program for even odd. Okay, so let's first see this collab. अब मैं आपको ये लॉजिकल वाला समझाने की कोशिश करती हूँ, होपफुली आपको समझ आ जाए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर्स. हम लोगों ने क्या किया कि लेट इट बी 5 3 ओवर है, ठीक है. हम लोगों ने x एक वेरिएबल लिया, उसका वैल्यू असाइन करा दिया 5, एंड y एक वेरिएबल लिया जिसका वैल्यू हमने असाइन करा दिया है 3. अब हम लोगों ने क्या किया, इफ स्टेटमेंट दिया, एंड यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन डाल दिया कि इफ x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 3, then we're going to enter this loop. Sorry, not loop. Then we're going to enter over here. Then we're going to execute this particular area of code that is under if. Okay? तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, मैंने आपको जब लॉजिकल ऑपरेटर्स का टेबल दिखाया था, then you must have seen that there was that or truth table. Okay, when either of the two conditions were true, then our answer would have been true, right? So x equals to 5. So we are checking it if x equals to 5. So yes, x is equal to 5, we have assigned it. Or y equals to 3, and y is also equal to 3, we have assigned it earlier, we have assigned it over here. So ये जो है, this is true, x equals to 5 is true, y equals 3 is true. So true or true is going to give us true. So if this statement is true, so we're going to get into over here and we're going to print x plus y. ठीक है. एंड एक चीज ध्यान रखना कि अगर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता तब वो एल्स पे जाता है. ओके, ये नहीं है कि इफ भी होगा और एल्स भी एग्जीक्यूट होगा. लाइक अगर ये वाला सिचुएशन अपना, wait a minute, where was, हाँ, अगर हमारा इफ के अंदर वाला कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाता है, तब वो पर्टिकुलर कोड जो है वो एल्स के अंदर का स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और एल्स इट्स गोना एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट दैट इज अंडर इफ, दैट इज इनसाइड इफ. सो अब हम लोगों ने प्रिंट किया था पहले, लेट्स सी. सो ये ट्रू आया इफ के अंदर. अब हम आए x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 3, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था. ट्रू और ट्रू इज गोना गिव अस ट्रू. So this is the statement that's going to be executed, that is print x plus y. So this is going to be 8. Now अब हम लोगों ने क्या किया कि let's change this to 4. ठीक है,
तो हमारे पास में ये पर्टिकुलर कंडीशन है वो तो फॉल्स हो गया, बट स्टिल y इक्वल्स 3 इज ट्रू। सो बेसिकली अभी जो इफ के अंदर का कंडीशन है वो अभी भी ट्रू है। सो अभी भी प्रिंट x प्लस वाई ही एग्जीक्यूट होने वाला है, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, यू कैन सी इट। और अगर हम दोनों चेंज कर देते हैं, दैट वाज ऑलरेडी चेंज्ड, ठीक है, और हम अगर अब हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवाया एंड देन वी आर गेटिंग दिस वैल्यू। पहले इफ पे आया, चेक किया, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, मतलब इसके अंदर नहीं जाना है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना है। और ये नहीं करना है तो मतलब इसके अलावा एल्स प्रिंट दिस। सो प्रिंट x minus y where our x is 1 and our y is 4. So this is going to give us the result 1 minus 4, that is minus 3. Okay, this is the logical operator example that you were asking about. Okay, I hope it is clear now, right? You can tell me if you have a doubt or else I'm proceeding. Yeah, Okay, go ahead. okay. Go ahead. Now for n in 100, so basically in is a keyword. Okay, n is a keyword. You're gonna learn about it later. I'm not gonna tell you this example right here. Okay, this all these things you're gonna learn later in for loop in the next class. Okay, अभी आप लोग सिर्फ कंफ्यूज ही हो गए इससे, सो मैं अभी ये वाला एग्जांपल नहीं ले रही हूँ यहाँ पर। तो अब हमारे पास में आता है इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में आता है इफ -5 प्रिंट यस, एल्स प्रिंट नो। इफ एल्स का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। सो यस, ओके। तो बेसिकली इसके लिए मैं आपको एक कोड टेक्स्ट खोल के बताती हूँ। condition equals to some value, ओके। अब यहाँ पे Asta, how much is left for today? लेट मी सी, बस ये इफ एल्स ही समझाने हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, बाकी सब हो गया है। So let me say one thing. Let us conclude this here only, because most of the students are having net problem. They have got the data exhausted. Okay, so we'll continue with if else condition examples tomorrow. Okay.